پیش خدمت ہے کہانی ماہ نور کی، جس نے صبر سے وہ سب کچھ حاصل کر لیا جس کی وہ حقدار تھی، اور کس طرح وہ ایک شہزادی بنی۔ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں آخری تک بنے رہے۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، سندھ نامی شہر میں ایک تاجر رہا کرتا تھا جس کی 2 بیٹیاں تھیں، جس میں سے ماہ نور تاجر کی پہلی بیوی کی بیٹی تھی، ایک عام سی شکل و صورت والی لڑکی، سیاہ رنگ۔ ماہ نور کی شکل و صورت اتنی خاص نہیں تھی، لیکن تاجر کی دوسری بیٹی جس کا نام شاہین تھا وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، گورا رنگ، نازک بلا کی خوبصورت تھی۔ لیکن تاجر اپنی دونوں بیٹیوں میں سے سب سے زیادہ محبت شاہین سے کرتا تھا، اسے اس کی شادی کی کوئی بھی فکر نہیں تھی۔ ماہ نور جس کی رنگت سیاہ تھی، تاجر کو نور کی شادی کی کوئی بھی فکر نہیں تھی۔ وہ یہی سوچتا تھا کہ ایسی شکل و صورت والی لڑکی سے بھلا کون شادی کرے گا۔ شاہین کی خوبصورتی کی چرچا پورے سندھ میں مشہور تھی، ہر جگہ سے شاہین کے لیے بہترین سے بہترین گھر کے رشتے آتے، اور ماہ نور کو ان کے سامنے آنے کی اجازت بھی نہ دی جاتی۔ ماہ نور کا باپ تو سگا تھا مگر ماں سوتیلی تھی، وہ ماہ نور پر بہت زیادہ ظلم کرتی اور اس سے بہت زیادہ کام کرواتی۔ تاجر بھی اپنی بیوی سے کچھ نہ کہتا، جب بھی وہ ماہ نور سے گھر کا سارا کام کرواتی وہ بھی اسے نیچے دکھانے میں کوئی کسر نہ چھوڑتا، کیونکہ وہ اس کے لیے بوجھ تھی۔ تاجر یہی سوچتا تھا کہ کون اس بدصورت لڑکی سے شادی کرے گا۔ ماہ نور صبر کرتی، اپنے ماں باپ سے کوئی شکایت نہ کرتی، گھر کا سارا کام کرتی، کبھی بھی کوئی شکایت کا موقع نہیں دیتی۔ نور اپنے والد سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، مگر باپ تھا کہ اپنی سگی بیٹی کو بوجھ سمجھتا۔ ماں کے جانے کے بعد نور کا ایک ہی سہارا تھا، وہ تھا اس کا باپ، مگر نئی بیوی اور بیٹی کے پیار نے اسے اتنا اندھا بنا دیا تھا کہ وہ ماہ نور کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ ماہ نور صرف ایک نوکرانی بن کر رہ گئی، وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتی۔ تاجر کے پاس مال و دولت کی کوئی بھی کمی نہیں تھی، ماہ نور زندگی اچھے سے گزار سکتی تھی، مگر اس کی سوتیلی ماں نے اس کا جینا حرام کر دیا اور وہ ایک نوکرانی کی حیثیت سے گھر میں رہنے لگی۔ ایک دن شاہین کے لیے رشتہ آیا، رشتہ بھی بہت بڑے گھرانے کا تھا، کیونکہ وہ خوبصورت تھی۔ لڑکے والوں کے لیے بہت سے پکوان بنائے گئے جو کہ ماہ نور نے بنائے تھے۔ جب مہمان گھر میں آئے، ماہ نور کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ جب مہمانوں نے کھانے کی تعریف کی تو یہ بتایا گیا کہ یہ سب کچھ شاہین نے بنایا ہے۔ پھر کیا تھا، رشتہ پکا ہو گیا، شاہین کی شادی طے کر دی گئی۔ جیسا کہ تاجر چاہتا تھا کہ اس کی خوبصورت بیٹی کی شادی پہلے ہو جائے، جبکہ رشتے میں ماہ نور بڑی تھی۔ شاہین کی شادی ایک خوبصورت نوجوان سے ہو گئی۔ شاہین کی شادی بہت دھوم دھام سے کی گئی، اس کے لیے جہیز میں سونے، اشرفی، ہیرے جواہرات اور چاندی کے برتن دیے گئے۔ تاجر نے اپنی خوبصورت بیٹی کی شادی اتنی شان و شوکت کے ساتھ کی کہ لوگ اسے عمر بھر یاد رکھے۔ شاہین کی رخصتی کر دی گئی، لیکن ماہ نور کو شادی میں شریک نہیں ہونے دیا اور نہ ہی اسے اس دن کھانا دیا گیا۔ شاہین کی شادی کے بعد سوتیلی ماں نے ماہ نور پر بہت ظلم ڈھائے، جس کا کبھی اس نے سوچا نہ تھا کہ اس پر اتنا ظلم کیا جائے گا۔ ماہ نور بہت ہی سیدھی سادی فرما بردار لڑکی تھی، وہ صبر کرتی۔ تاجر نے کبھی اپنی بیٹی ماہ نور کے لیے رشتہ تلاش نہیں کیا اور نہ ہی کبھی اس کے دل میں نور کی شادی کا خیال آتا۔ تاجر کو اپنی بیٹی ماہ نور سے محبت ہی نہیں تھی اور یہ خبر نہیں تھی کہ سوتیلی ماں اس بچی پر کیا کیا ظلم کرتی ہے۔ اسی طرح دن گزر جاتا، رات ہو جاتی، وہ اپنے کام کاج سے تھک ہار کے اپنے بستر پر جاتی اور چپکے چپکے آنسو بہاتی اور ان اچھے دنوں کو یاد کرتی جب اس کی پیاری ماں زندہ تھی۔ صرف دنیا میں اس کی ماں ہی تھی جو اسے بے حد محبت کرتی اور اسے دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی کہتی، اور یہی کہتی کہ میری پیاری بیٹی کے لیے بہت خوبصورت شہزادہ آئے گا اور اسے اپنے ساتھ لے کر جائیں گا۔ وہ اپنی ماں کی باتوں کو یاد کرتے ہوئے رونے لگ جاتی اور یہی سوچتی کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، کوئی شہزادہ بھلا مجھ سے کیسے محبت کرے گا، میں تو اتنی بدصورت ہوں، کوئی میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، میرے ماں باپ مجھے پسند نہیں کرتے، وہ بھی مجھ سے دور بھاگتے ہیں،
वो इन्हीं सब बातों को सोचकर इतना रोई कि निढाल हो गई। उसे उस रात नींद न आई। फजर का वक्त हो गया। उसने नमाज अदा की और नदी के पार चली गई। वो एक किनारे पर जाकर बैठ गई। वो अपने हाथों में घर से कुछ ले आई ताकि वो मछलियों को कुछ खिला सके। वो रोते रोते मछलियों को दाना डालने लगी। बहुत सी मछलियाँ दाना खाने के लिए ऊपर आई। माहे नूर के आंसू बहने लगे। वो रोज इसी तरह नदी के पास आती और मछलियों को दाना खिलाती। उसने यही आदत बना ली। उसे ये सब करने से सुकून मिलता। एक दिन वो रोज की तरह नदी के पास बैठी हुई थी। इसमें से एक मछली निकलकर बाहर आई और इसने माहे नूर से बात की। इसने माहे नूर का नाम लिया। माहे नूर इसे हैरत से देखने लगी। उस मछली ने माहे नूर से कहा, तुम क्यों उदास होती हो और क्यों रोती हो? तुम तो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। नूर को अपनी माँ की वही बात याद आ गई। इसकी माँ भी इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की कहा करती थी। नूर अपनी माँ को याद करके और भी ज्यादा रोने लगी। मछली ने कहा, नूर परेशान मत हो और रोया ना करो। ये खूबसूरत जिंदगी नेमत है, इसे रोने में जाया ना करो। नूर बड़ी हैरत के साथ उस मछली को देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो मछली उससे बात कर रही है। ऐसा लग रहा था कि वो कोई सुहाना ख्वाब देख रही हो। नूर ने मछली से कहा, मेरी जिंदगी तो बोझ बन गई है। मेरे पास रोने के अलावा और कोई काम नहीं। मैं मेरे घर की नौकरानी बन के रह गई हूँ। मेरी माँ मुझ पर बहुत जुल्म करती है। मेरे वालिद मुझसे प्यार नहीं करते और न ही मेरी शादी की फिक्र है और कोई भी लड़का मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं। मेरी जिंदगी बस इन्हीं आंसुओं के सहारे गुजर रही है। मछली ने कहा, मुझे मालूम है नूर, अब तुम खामोश हो जाओ। अब तुम्हारे रोने के दिन गए। तुम्हारी मुसीबत के दिन खुदा ने खत्म कर दिए हैं। उसे तुम पर रहम आ गया है। इतना कहकर मछली ने अपने मुंह से एक कीमती मोती निकाला और नूर को पेश किया। नूर इस मोती को देखकर बहुत खुश हुई और उसे देखने लगी। वो एक सफेद मोती था। मछली ने कहा, तुम इस मोती को अपने गले में पहन लो। ये तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। नूर को यकीन न हुआ। इसे अब तक लग रहा था कि वो कोई हसीन ख्वाब देख रही है। क्या ये कोई हकीकत है या ख्वाब है? मछली ने कहा, जब भी तुम इससे जो भी मांगोगी वो तुम्हारे लिए हाजिर हो जाएगा। नूर बहुत खुश हुई और इसके गले में एक चैन थी। इसने वो मोती अपने गले में पहन लिया। अब तुम इस मोती के जरिए अपनी तमाम ख्वाहिश पूरी कर सकती हो। नूर खुश होकर बोली, बहुत अच्छा, अब तो बड़ा मज़ा आएगा। नूर खुशी से उछलने कूदने लगी। उसने मछली का शुक्रिया अदा किया और वो मछली वहाँ से गायब हो गई और इस मोती की तरफ देखते हुए कहा, ए पाक मोती, मैं तुझसे ये ख्वाहिश करती हूँ कि मुझे एक बड़ा सा सजा सजाया महल जिसमें बहुत सारे नौकर चाकर हो और खाने के लिए लजीज और बेहतरीन से बेहतरीन पकवान हो। ये अल्फाज नूर के मुंह से निकले ही थे कि हवा का एक तेज झोंका आया और देखते ही देखते नूर हवा में उड़ने लगी। इसने महसूस किया कि वो फिजा में उड़ रही है। इसे बहुत मज़ा आ रहा था। आसमान भी सितारों से रोशन था। इसने नीचे देखा तो शहर निहायत छोटा सा लग रहा था। बड़े बड़े ऊंचे से मकान रुई के मानिंद नजर आ रहे थे। नूर ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। जब इसकी आंखें खुली तो एक बड़े से महल के अंदर थी। चारों तरफ रंग बिरंगी पर्दे लगे हुए थे। ऐशो आराम की तमाम चीजें वहां रखी हुई थी। नूर ने चारों तरफ अपनी गर्दन घुमाई। जहां नजर जाती वो कोना बेहतरीन से बेहतरीन नक्काशी से सजा था। सजी सजाई दीवारें, कीमती पर्दे, हर तरफ शमा रोशन थी। कमरे में बेहतरीन कालीन बिछा हुआ था। बैठने के लिए खूबसूरत नक्शो निगार वाली कुर्सी रखी हुई थी। अलमारियों में सोने चांदी के बर्तन भरे हुए थे। वो इस बड़े से कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में गई। वो सभी कमरा बहुत अच्छे से सजा हुआ था। उस कमरे में भी इतनी उम्दा चीजें थी। इतनी उम्दा चीजें देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन न आया। सोचने लगी, ये एक हसीन ख्वाब है। माहे नूर अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी एक नौजवान लड़की ने कमरे में दस्तक दी और कहा, मलकाए सिंध, इस कनीज का सलाम कबूल कीजिए। कनीज के मुंह से मलका लफ्ज़ सुनकर नूर बहुत खुश हुई। कनीज ने कहा, मलका, खाना तैयार है। नूर फिर इस कमरे में गई जहाँ मेज़ पर सोने चांदी के बर्तनों में तरह तरह के लजीज खाने फल रखे हुए थे। ये सब देखकर नूर की आंखों में आंसू आ गए। इतनी इज्जत और इतने लजीज खाने नूर ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाए थे। कनीज नूर के पास खड़ी रही और नर्म लहजे में कहा, मैं आपकी हर खिदमत के लिए हाजिर हूँ।
नूर चारों तरफ हैरत से देखने लगी और अपने आप से ही बात की, इतने कीमती सामान, इतना खूबसूरत महल, ये किसी राजमहल से कम नहीं लगता। क्या यह सब कुछ सच है? या अल्लाह तेरा शुक्र है अगर ये सब हकीकत है तो। इतने में कनीज बड़े ही आलीशान बर्तन में चाय ले आई और नूर को पेश की। कानिज ने कहा, अब आप आराम कर ले, और उसे एक शानदार ख्वाबगाह में ले गई जहाँ बड़ी सी अलमारी में कीमती कपड़े रखे हुए थे जैसा कि शहजादियाँ पहना करती थी, और एक वहाँ बड़ा सा पलंग लगा हुआ था जिस पर नरम नरम बिस्तर बिछा हुआ था। वो आराम से उस बिस्तर पर बैठ गई। वो जब भी नजर घुमाकर अपने खूबसूरत कमरे को देखती तो हैरत से दांतों तले उंगलियां दबा लेती। माहे नूर के लिए ये महल किसी हसीन ख्वाब से कम न था। वो जैसे ही इस नरम और खूबसूरत बिस्तर पर लेटी, इसे एक गहरी नींद आ गई और वो एक मीठी नींद में सो गई और हसीन हसीन ख्वाब देखने लगी। सुबह उठते ही वो अपने आप को एक बड़े से शीशे में निहारने लगी और अपने गले में पहनी हुई चैन में लगी उस मोती को देखने लगी और इस मोती से अपनी ख्वाहिश जाहिर की और कहा, ए पाक मोती, मुझे सोने की अशरफियों से भरी एक थैली चाहिए ताकि मैं भी दूसरी औरतों की तरह बाजार जाऊं और अपनी पसंदीदा चीज़ों को खरीद सकूं। माहे नूर जैसे ही अपनी ख्वाहिश जाहिर की, इसके हाथों में सोने से भरी अशरफियों की एक थैली हाजिर हुई। माहे नूर बहुत खुश हुई। इसके पास दौलत की कोई भी कमी नहीं थी, वो जो चाहे वो खरीद सकती थी। फिर उसने अपने उन्हीं पुराने मैले कुचेले कपड़ों की तरफ देखा जिसे पहनकर वो अपने घर से निकली थी। इसने महल में रखे हुए कीमती कपड़े पहने, कीमती जेवर पहनकर खादिमा के साथ बाजार गई। इसने अपना चेहरा नकाब से छुपा लिया ताकि कोई उसे पहचान न सके। कुछ ही दूर चली थी कि उसने अपनी सौतेली माँ को बाजार में देखा। नूर को लगा इसके वालिदैन इसे तलाश करने के लिए यहाँ आए हैं, मगर ऐसा नहीं था। नूर के माँ बाप तो उसे बोझ समझते थे जिसने इसे ढूंढने की जहमत भी ना की। नूर दूर खड़ी इन्हें देखती रही। इसने अपना चेहरा पूरी तरह नकाब से ढक रखा था और एक शॉल अपने ऊपर डाली हुई थी। नूर का ये भरम भी टूट गया कि इसके वालिदैन उसे ढूंढने के लिए आए हैं, मगर ऐसा नहीं था। वो अपने काम के लिए बाजार आए थे। इसके माँ बाप फल की दुकान पर खड़े होकर फल खरीद रहे थे। उनके चेहरे पर एक शिकन तक न थी अपनी बेटी के घर से गायब हो जाने की। वो तो यही सोच रहे थे कि अच्छा हुआ हमारे सर से बला टली, हमें उसकी शादी नहीं करनी पड़ी या जहेज का खर्चा नहीं उठाना पड़ा। इधर दूसरी तरफ नूर बड़े आराम से अपनी जिंदगी महल में गुजार रही थी। उसे अपने घर जाने का कोई भी शौक नहीं था। दुनिया की तमाम नेमतें और हर तरह की खुशियाँ उसके लिए मैसर थी। वो अपनी हर ख्वाहिश पूरी करती, हर रोज़ कीमती कीमती कपड़े पहनती, लजीज लजीज खाने खाती जो उसने अपने माँ बाप के घर में कभी नहीं खाए थे। अब नूर अपनी मर्जी की मालिक थी। यहाँ ना उसे सौतेली माँ का डर था और ना बाप की नफरत का। वो जब चाहे सो जाती, जब चाहे उठ जाती, जब उसका मन करता तो सैर के लिए निकल जाती। वो शहजादियों की तरह जिंदगी जी रही थी। उसे रोकने टोकने वाला कोई न था और ना ही वो किसी की पाबंद थी। एक दिन माहे नूर ने कनीज को किसी काम से बाहर भेजा और अपने बिस्तर पर आराम कर रही थी। किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। नूर ने समझा कनीज इतने जल्दी कैसे लौट आई। उसने दरवाज़ा खोला तो देखा दरवाजे पर एक बहुत खूबसूरत नौजवान खड़ा है। उसका एक पैर जख्मी था, बहुत खून बह रहा था, वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। नूर ने जैसे ही उस शख्स को देखा तो घबरा गई क्योंकि कनीज भी बाहर गई हुई थी। नौजवान शख्स नूर को कनीज समझने लगा। नूर ने अपने चेहरे पर नकाब पहन रखा था और कहा, मुझे माफ़ करें, मैं एक अजनबी हूँ। एक हादसे में मेरा पैर जख्मी हो गया है। और कहने लगा, क्या यहाँ कोई हकीम मिल सकता है जो मेरा इलाज कर सके? नूर ने कहा, हाँ, मगर हकीम साहब का घर यहाँ से बहुत दूर है और आपके पैर में चोट लगी है, आप कैसे जा पाएंगे? आपसे तो चला भी नहीं जा रहा। आप एक काम करें, अंदर आ जाए, मैं कुछ करती हूँ, मैं ही आपके जख्म पर मरहम पट्टी कर दूंगी। नूर उस नौजवान को अपने हाथों का सहारा देते हुए अपने कमरे में ले आई। फिर पानी गर्म किया और खून को अच्छी तरीके से साफ किया, जख्म की मरहम पट्टी की और अच्छे से बांध दिया। नौजवान नूर को देखता रहा मगर उसने अपने चेहरे पे नकाब ढक रखा था। और नौजवान ने कहा, मैं तुम्हारा शुक्र कैसे अदा करूं? मेरे पैर का इतना खून बह चुका था। अगर तुम मेरे वक्त पर मदद ना करती तो ना जाने मेरे साथ क्या हो जाता। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ और तुम्हारा ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा।
और जब भी मैं सिंध की सरजमीन पर आऊँ तो तुम्हारे लिए एक अच्छा सा तोहफा ज़रूर लेकर आऊँगा। अभी तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए शुक्रिया के अलावा और कुछ नहीं है। नूर ने कहा, जनाब शुक्रिया किस बात का, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। नूर ने एक मरहम की डिब्बी उस नौजवान को दी और कहा, इस मरहम को आप अपने साथ ले जाए और इसे रोज़ लगाए। अल्लाह ने चाहा तो आपका ज़ख्म जल्दी भर जाएगा और सारी तकलीफ़ जाती रहेंगी। अभी दोनों बात ही कर रहे थे कि नूर की कनीज़ भी आ गई। नूर ने कनीज़ से कहा, इनके लिए काढ़ा तैयार करो। कनीज़ काढ़ा तैयार करने में मसरूफ़ हो गई और नूर भी अपने कमरे में आ गई। इसने अपने चेहरे से नकाब नहीं हटाया। कनीज़ ने जल्दी जल्दी काढ़ा बनाया और चांदी के बर्तन में मुसाफिर को काढ़ा पेश किया। नौजवान इन खूबसूरत बर्तनों को देख रहा था। कुछ देर बाद नूर भी वहां आ गई। नूर ने अपने चेहरे से अब तक नकाब नहीं हटाया था। वो नकाब पहने ही उस शख्स के सामने खड़ी थी। जैसे ही नौजवान ने काढ़ा पिया, उसके जिस्म में थोड़ी ताकत महसूस हुई और वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। नूर ने इस नौजवान की खिदमत तो की, मगर अब तक अपना चेहरा इसे ना दिखाया। अब रुखसती का वक्त आ गया। नूर उस नौजवान को छोड़ने के लिए दरवाजे तक आई। नौजवान ने फिर से एक बार नूर का शुक्रिया अदा किया। नूर ने कहा, बस बस, आप अब कितनी बार हमारा शुक्रिया अदा करेंगे। बस आप मुझसे वादा करें कि जब भी आप सिंध की सरजमीन पर आए तो हमारे गरीब खाने में ज़रूर तशरीफ़ लाना। मैं अपनी इस खादिमा के साथ रहती हूँ। नौजवान मुस्कुराया और कहा, जी बेहतर, मैं आपसे वादा करता हूँ जब भी मैं सिंध आऊँगा तो आपसे मुलाकात के लिए ज़रूर आऊँगा, मगर मेरी भी एक शर्त है। मैं अगर आपके लिए कोई तोहफ़ा लेकर आऊँ तो उसे आपको कबूल करना होगा। नूर ने खुश होकर कहा, जी बिल्कुल। फिर मुसाफिर ने सलाम किया और वहाँ से चला गया। नौजवान के जाते ही नूर का दिल उदास हो गया। उसे ऐसा लगा कि कोई अपना उसे छोड़ गया हो। खादिमा कहने लगी, मालकिन, ये नौजवान बड़ा ही खुश मिजाज था। नूर ने कनीज़ से कहा, तुम सच कहती हो, मेरा भी यही ख्याल है। नूर बहुत देर तक उस नौजवान के बारे में सोचती रही। बहुत देर हो गई। वो करवटें बदलती रही, उसे नींद न आई। सोचते सोचते उसकी आंखें लग गई। अब सुबह हो गई। वो रोज़ की तरह अपने आप को उस बड़े से आईने में निहारने लगी। वो अपने आप को निहारी रही थी कि उसने देखा उसके गले में जो कीमती मोती था वो नहीं है। इसने अपने खादिमा को आवाज़ लगाई और कहा, मेरा वो मोती कहीं नज़र नहीं आ रहा। तुम जल्दी से जाओ और उस मोती को तलाश करो। खादिमा ने पूरा महल छान मारा, मगर उस मोती का कुछ पता न चला। नूर बहुत उदास हो गई। इसकी सबसे कीमती चीज़ गुम हो गई और वो बहुत कोशिशों के बाद भी नहीं मिली। खादिमा ने कहा, मालकिन, अच्छे से याद करें, आप कहीं गई थी या आपने कहीं वो मोती उतार के रख दिया है? नूर ने कहा, ऐसा नहीं है, मैं ना ही कहीं गई हूँ और ना ही वो मोती मैंने अपने से अलग किया। बहुत कीमती मोती था, या खुदा, अब क्या होगा? नूर बहुत रोने लगी। वो मोती एक सहारा था जिससे वो अपनी तमाम ख्वाहिश पूरी कर सकती थी। उसे कुछ याद ना आया कि वो मोती कहाँ गिर गया है। नूर अपने आप को तन्हा महसूस करने लगी। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए, मोती कहीं ना मिला। नूर भी अब इस तन्हा जिंदगी से उकताने लगी। अब वो कोई ख्वाहिश भी नहीं कर सकती थी, इससे वो मोती गुम हो गया था। वो कभी कभी उस नौजवान को याद करती और दिन इस तरह कट जाता। वो शायद इस अजनबी शख्स को चाहने लगी थी, मगर ना तो इसके पास उसका पता था और ना नाम मालूम था, क्योंकि उस दिन जल्दबाजी में नूर ने उस शख्स का नाम ना पूछा और ना ठिकाना। इसी तरह दिन गुजर गए। एक दिन वो बैठे बैठे उसी दिन को याद कर रही थी जब वो नौजवान उसके घर आया था और किस तरह उसने उसकी खिदमत की। वो अच्छे से याद कर रही थी। अचानक उसे याद आया जब वो नौजवान के जख्म पर मरहम लगा रही थी तो उस नौजवान को बहुत तेज दर्द हुआ और उसने दर्द के मारे नूर का कंधा जोर से पकड़ लिया और उसी दौरान चैन टूट के गुलदान में जा गिरी। नूर ने उस गुलदान को टटोला तो उसके अंदर चैन और मोती उसे मिल गया। वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। उसने खुश होकर सारा माजरा अपनी खादिमा को बताया। अगले ही दिन दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। नूर ने खिड़की के जरिए झांक कर देखा तो वही नौजवान खूबसूरत पिंजरा उठाए खड़ा था। नूर का दिल खुशी से झूम उठा, जिसे वो इतने दिनों से याद कर रही थी। वो शख्स अब उसके सामने खड़ा था, मगर फिर उसे अपनी बदसूरत चेहरे का ख्याल आया। वो सोच में पड़ गई, मैं एक बदशक्ल
पागल हूँ और वो नौजवान कितना खूबसूरत है और मैं कैसे अपनी बदसूरत शक्ल के साथ इसके सामने जाऊँ। लिहाजा इसने उस पाक मोती से मुखातिब होकर कहा, ए पाक मोती, मैं तुझसे इल्तिजा करती हूँ, मेरी बदसूरती को खूबसूरती में बदल दो, मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत और हसीन लड़की बन जाऊँ। ये अल्फाज उसके मुँह से निकले ही थे कि बादल की गरज के मानिंद एक जोरदार आवाज़ नूर के कानों में आई, ए लड़की, तेरे लिए यही बेहतर था जो शक्लो सूरत तुझे खुदा ने बख्शी थी, तू इस पर राजी रहती। अगर तुझे ये शक्लो सूरत पसंद नहीं तो फिर हम इसे बदल देते हैं, मगर याद रखना ये तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश होंगी, इसके बाद तुम अपनी कोई ख्वाहिश इस मोती से पूरा ना कर सकोगी। क्या तुम इस बात पर राजी हो? नूर खौफजदा होकर बोली, हाँ हाँ, मैं इस चीज़ के लिए राजी हूँ। मुझे एक खूबसूरत चेहरा चाहिए जैसे कि शहजादियों का होता है। और कहने लगी, इसके बाद मुझे इस मोती की कोई ज़रूरत नहीं होगी। दूसरी तरफ आवाज़ आई, बहुत अच्छा, अब तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी की जाती है। नूर को अजीब तरह की घबराहट होने लगी, बेचैनी महसूस होने लगी। इसने अपने गले से वो मोती निकाला और एक तरफ फेंक दिया। नूर ने जैसे ही मोती को फेंका, पूरे कमरे में धुआं सा छा गया और कुछ देर बाद सब कुछ थम गया। जब नूर ने अपने आप को आईने में निहारा तो अपने आप को देखती ही रह गई। वो एक बहुत खूबसूरत लड़की में बदल चुकी थी। एक हसीन चेहरा उसके सामने था, उसके दांत मोतियों की तरह चमक रहे थे, जैसा कोई चांद जमीन पर उतर आया हो। लंबे बाल, कीमती कपड़े, सब कुछ बदल चुका था। ऐन उसी वक्त खादिमा उस नौजवान को कमरे में ले आई। जब उस नौजवान की नज़र नूर पर पड़ी तो उसे देखता ही रह गया और कहने लगा, ऐसी खूबसूरती आज तक मैंने नहीं देखी। मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत तोहफा लाया हूँ जो आपकी तन्हाई दूर कर सकता है, जो आपका बेहतरीन साथी साबित होगा। ये एक बात करने वाला परिंदा है। नौजवान ने उस परिंदे को माहे नूर का नाम लेने को कहा। परिंदा बोल पड़ा, माहे नूर, माहे नूर। नूर बहुत खुश हुई और इस तोहफे को तस्लीम कर लिया और नौजवान का शुक्रिया अदा किया और कहा, आप वाकई मेरे लिए बहुत कीमती तोहफा लेकर आए हैं, हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे। नौजवान कहने लगा, ये आपको रोज़ नए नए गाने सुनाया करेगा। नौजवान ने पिंजरा नूर के सामने रख दिया। नूर पिंजरे को निहारने लगी। नूर ने कहा, आपकी बड़ी मेहरबानी जो आप हमारे गरीब खाने में दोबारा तशरीफ़ ले आए। नौजवान कहने लगा, आपने जो मुझ पर एहसान किया वो मैं कभी भूल नहीं पाया और जहाँ जहाँ भी मैं गया आप मुझे हमेशा याद रही। अगर आप उस वक्त मेरे पैर की मरहम पट्टी ना करती तो शायद आज मैं अपने पैरों पर खड़ा ना होता और शायद अपाहिजों की तरह ज़िंदगी गुजार रहा होता। नूर ने कहा, आप ये सब कहकर हमें शर्मिंदा ना करें, ये तो हमारा फ़र्ज था। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। नूर ने नौजवान के लिए बेहतरीन खाना बनवाया और उसकी खूब खातिरदारी की। नूर और वो नौजवान दोनों बात करने में मसरूफ़ हो गए। नौजवान कहने लगा, आप इस आलीशान महल में अकेली रहती है? आपके वालिद किस रियासत के बादशाह है? आप किस बादशाह की बेटी है? आप जैसी खूबसूरत लड़कियां तो बादशाहों की बेटी हुआ करती है। ये सब बातें सुनकर नूर का दिल उदास हो गया और गमगीन लहजे में बोली, नहीं, मैं किसी बादशाह की बेटी नहीं जिसे आप बादशाह की बेटी समझ रहे हैं। दरअसल मैं एक ताजिर की बेटी हूँ। मेरे वालिद इसी शहर में रहते हैं, वो इस शहर के ताजिर है और मैं उनकी मामूली सी बेटी हूँ। नूर ने अपनी तमाम कहानी उस नौजवान को सुना दी। नौजवान ने कहा, कोई बात नहीं, अगर आप शहजादी नहीं हो तो आप अपना दिल छोटा ना करें, मैं आपको शहजादी बना दूंगा। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? मैं एक बहुत बड़े बादशाह का बेटा हूँ और अपने लिए खूबसूरत और रहमदिल शहजादी ढूंढ रहा था। ये तमाम खूबियाँ मुझे आप में नजर आई। आप खूबसूरत होने के साथ साथ खुश इखलाक और मिलनसार भी है। मैं दुनिया के बहुत से ममालिकों में गया और कई शहजादियों को देखा, लेकिन उनमें से कोई भी आप जैसी ना थी। अगर आपको ये शादी मंजूर नहीं है तो आप इनकार कर सकती है। नूर ने मुस्कुराया और शर्म से अपना सर झुका लिया और शादी के लिए हाँ कह दी। इसके बाद नौजवान नूर को अपने वतन ले गया और बहुत धूमधाम से दोनों की शादी हुई। उधर नूर की रुखसती होते ही वो बड़ा सा महल गायब हो गया। नूर अपने शहजादे के साथ बहुत खुश थी। नूर को इस तरह अपने सब्र का फल मिल गया। उधर दूसरी तरफ नूर का बाप जो बहुत बड़ा ताजिर था वो बहुत बीमार पड़ गया।
اس کا آخری وقت قریب آ گیا اور جو بیٹی اور بیوی کو وہ دل و جان سے چاہتا تھا وہ دونوں عیش و آرام کی زندگی گزار رہے تھے۔ ان دونوں کو تاجر کی کوئی بھی فکر نہیں تھی۔ تاجر اپنے بستر پر تنہا پڑا رہتا، کوئی اس کی خدمت نہ کرتا۔ نور کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ اس کے والد اپنے زندگی کے آخری دن گزار رہے ہیں، وہ انہیں اپنے وطن لے آئی اور ان کی خدمت کی، اور جو شخص اپنی بیٹی کو بدصورت اور بوجھ سمجھتا تھا آج اسی نے آخری وقت میں اپنے والد کا ساتھ دیا۔ تاجر کو اپنی غلطی پر پچھتاوا تو تھا مگر آخری وقت میں وہ اپنی بیٹی سے کچھ نہ کہہ سکا۔ اپنی بیٹی اور داماد کو دعائیں دی اور دنیا سے رخصت ہو گیا، اور اس طرح نور نے اپنے صبر سے سب کچھ حاصل کر لیا۔ دوستو، امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوں گی۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دے، بیل آئیکن کو ہٹ کر دے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھے۔ اجازت دے، اللہ حافظ۔